नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है। बता दें कि एस जयशंकर का ये कहना है कि अब भारत जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अब भारत जो है उस मूड में नहीं है जहां पर एक गाल पे थप्पड़ पड़ने के बाद दूसरा गाल आगे करने की रणनीति थी। अगर आतंकवाद को यहां पर अंजाम दिया जाता है तो भारत हिचकेगा नहीं और इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। कहीं ना कहीं यह संदेश न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के उन देशों के लिए भी माना जा रहा है जो कि भारत को लेकर के जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग रखते हैं। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करते समय भारत दूसरा गाल आगे करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि हमारे देश के आजाद होते ही देश में आतंकवाद शुरू हो गया। विदेश मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद हमारी आजादी के समय से ही शुरू हो गया था, जब तथाकथित हमलावर पाकिस्तान से आए थे। पहले दिन से ही हमने आतंकवाद का सामना किया है और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से स्पष्टता होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में राजौरी हो या फिर पूंछ का इलाका हो या फिर अभी अखनूर का जो मामला सामने आया था, इसमें लगातार आतंकवादी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के जो सुरक्षा बल है इसका करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आतंकवाद को लेकर के यह बड़ा बयान मायने रखता है। पहले सुनिए जयशंकर आखिर इस पूरे मामले में क्या रवैया अपना रहे हैं। Terrorism started at the moment of our independence when so-called raiders came from across Pakistan. Okay, these were people. The general who later on, organized this, put it in his memoirs as a proud achievement. So from day one, we have faced terrorism, and it is something about which we must have absolute clarity, because you cannot respond to something if you yourself are in doubt about what it is. So what has changed in this country today, I think, is, and I particularly think the Mumbai 26/11 to me was the tipping point. That a lot of people were very confused till they saw the true graphic, impactful face of terrorism of 26/11. Now, what we need to do first is we need to counter, because I know there are people who said, "Oh, we had a very smart strategy of turning the other cheek." I don't think that's it's not just the mood of the nation. I don't think it makes sense. I don't think it makes strategic sense. If somebody is practicing cross-border terrorism, you must respond. You must extract, impose a cost out there. So the first part is, how do we ourselves develop the capacities, the mindset, the willpower, etc. to do that? And you can see the change in the last decade out there. The second is actually to delegitimize it. That the rest of the world should not think, because what had happened, because other countries had an interest, they made it out as though there was partition of India, then after that these two guys kept quarreling. Okay, today terrorism is also part of the post-partition debates. Unless we hammer home that terrorism message, terrorism must be outside what is allowed in legitimate competition between states. So states will compete, but some things, at the end of the day, into global order means there are rules of the game. And when somebody clearly violates rules of the game, it cannot be you are violating, it's okay, but I'm violating, it's not okay. Rules are rules. So, delegitimate, that's why to me, diplomacy, politics, lawfare, law enforcement, intelligence cooperation, all these come as part, the Home Minister, for example, has taken great interest in furthering this no money for terror initiative. Because at the end of the day, what sustains terrorism? It's money. So how do we go after terrorism? And we must, this is one area we must be actually right at the forefront. The third is when you say what will happen in 2030. I think if we keep
if there are robust responses, if there's continuous delegitimization, and then people see the countries which practiced it, they are discovering that the terrorism comes back to bite them. That today, there is terrorism happening in our neighboring country because they have nurtured these forces, and those very same forces are turning on them. So, just like when we were speaking about, development, you can be an exemplar of good development. You can also be an exemplar of bad policy. That, when people see what is happening to a country which is consumed by the very forces that it has nurtured, I think that is also a message to the world. So I very much hope that by 2030 we will have a very, all these together will actually create a change out there. आपको बता दें कि इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि आज इस देश में क्या बदल चुका है। मुझे लगता है कि मुंबई 26 से 11 एक टर्निंग पॉइंट था। 26 से 11 के क्रूर सच और उसके खौफनाक प्रभाव को देखने से पहले बहुत लोग इस भ्रम में थे। उन्होंने कहा कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो की नीति अब काम करने वाली नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि अब हमें सबसे पहले उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर थप्पड़ लगे तो हमें दूसरा गाल आगे बढ़ा देना चाहिए। वो रणनीति बहुत शानदार थी। उन्होंने कहा कि ना तो अब देश का मूड ऐसा है और ना ही मिजाज ऐसा है। मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है कि इसका कोई रणनीतिक मतलब है। अगर कोई सीमा पार आतंकवाद कर रहा है तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए 3 मोर्चों पर काम होना चाहिए, जो हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद ऐसी क्षमता, मानसिकता और इच्छा शक्ति कैसे विकसित करें, और पिछले 1 दशक में आप ये बदलाव देख सकते हैं। दूसरा ये कि आतंकवाद को नाजायज ठहराना होगा। बाकी दुनिया को नहीं सोचना चाहिए कि ये भारत पाकिस्तान का कोई पुराना झगड़ा है। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि आतंकवाद देशों के बीच वैध प्रतिस्पर्धा से बाहर है। हाँ, देश आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन कुछ नियम तो है ही इसके। कोई उन नियमों को नहीं तोड़ सकता। इसलिए कूटनीति, राजनीति, कानून, सुरक्षा सभी इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए गृह मंत्री जी नो मनी फॉर टेरर के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आखिरकार आतंक को पैसों से ही बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री की यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को सेना के वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिकों की शहादत के बाद आया है। यह घटना तब हुई जब 3 से 4 हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एक मारुति जिप्सी और सेना के एक ट्रक को निशाना बनाया। हमले के बाद आतंकवादियों ने कथित तौर पर हमला कर हथियार भी छीन लिया। अब इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत की ओर से की गई और बकायदा अखनूर इलाके में 4 आतंकवादियों को कल ढेर किया गया। और इसी के साथ ही सेना ने बकायदा एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया, जहां पर 3 आतंकवादी जो है वो एक आतंकी के डेड बॉडी को पकड़ करके सीमा के पार भागते हुए भी दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, भारत जो है अब आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और बकायदा पाकिस्तान को अब यह समझना चाहिए कि भारत जो है वो पुरानी रणनीति पर काम नहीं कर रहा है। सीधे तौर पर इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये कंफर्म किया है कि अगर आप मसले का हल बातचीत के दौरान सुलझाना चाहते हैं तो बातचीत तो होगी, लेकिन इस बीच अगर आप आतंकवाद को भी बढ़ावा देंगे तो 2 काम एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप बातचीत करके ये मसला शांत कर लीजिए, या फिर अगर आपको आतंकवाद का रास्ता ही अपनाना है तो फिर उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। कहीं ना कहीं 10 सालों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जो आतंकवाद है इसको लेकर के रोकथाम लगाई जाए। कई सारी ऐसी
टेररिस्ट ग्रुप है जिस पर की लगाम लगाया जा चुका है और कई सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हो या फिर आतंकवाद से जुड़े लोग हो, इन पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई है। खासकर लोग पाकिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों में बढ़ चढ़ करके अपनी पैठ बनाते हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजों को लेकर के भी लगातार भारत सरकार जो है वो सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है। बता दें कि खालिस्तान का मसला हो तो इसको लेकर के बकायदा भारत सरकार ने हाल ही में एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें तमाम आतंकवादियों के नाम निकाले गए हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है ताकि उनका आर्थिक तौर से कमर तोड़ने का प्रयास रहे। और इसी के साथ ही अगर हम बात कश्मीर को लेकर के करें, पाकिस्तान का जिस तरीके से रवैया रहा है तो इस चीज को लेकर के भी 2019 के बाद आर्टिकल 370 जब से हटा है उसके बाद से इसकी भरपूर कोशिशें की जा रही है। और पाकिस्तान में खासकर जितने भी टेरर जो एसोसिएशन हुआ करते थे, आतंकवादी संगठन हुआ करते थे, उन पर भी पूरी तरीके से सरकार की ओर से बैन लगा दिया गया है। न सिर्फ आतंकवादी संगठन जो कि बकायदा पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में काम करते थे, बल्कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी गृह मंत्रालय के द्वारा सख्ती अपनाई गई और इन संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के भारत जो है अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और देश में जहां जहां भी आतंकवादी गतिविधियां इस तरीके से सर उठाने का प्रयास करती है उसके फंड को फौरन कुचलने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ ही आजकल दुनिया भर में अज्ञात शख्स का खौफ भी लगातार बरकरार है। बता दें कि कई सारी खबरें इस बीच लगातार आ रही है कि कैसे अज्ञात बंदूकधारी जो हैं वो कभी कनाडा में तो कभी पाकिस्तान में जो आतंकवादी छिपे हुए हैं, जो किसी देश में जाकर के शरण लिए हुए हैं, उनको उन्हीं की सरजमी पर मारा जा रहा है, खात्मा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम खासकर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से इस बात को नकारता आया है कि उसने किसी भी आतंकवादी को शह दी हो, फिर चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, मौलाना मसूद अजहर हो, ऐसे कई सारे खौफनाक आतंकवादी हैं जिसको लेकर के हमेशा से पाकिस्तान इनकार करते हुआ आया है। लेकिन पल पल ये अपडेट से सामने आई है कि ये लोग जो हैं, ये आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान में ही छिपे हुए हैं और इनके कई सारे हैंडलर्स को इस वक्त अज्ञात लोगों के द्वारा ठिकाने भी लगाया जा चुका है और इनकी लाशें भी बरामद की गई है। बकायदा इनकी शिनाख्त भी की गई है कि कैसे ये लोगों की भर्तियां करवाते थे आतंकवादी संगठनों में, उनको ट्रेनिंग दिया करते थे ताकि वो भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके और भारत को नुकसान पहुंचा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है कि या तो आप बात करके ये मसला शांत कर लीजिए या फिर अगर आप आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं तो अब भारत भी जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।